Hello everybody, this is Khushi from Lexis and Company. Today in this video we will discuss about how can you marry your foreign soulmate in India as a legally. Like as you know that we know about the Special Marriage Act, which is like for the different religion, different caste. But what about if you want to marry a foreigner or a foreign person? So in that case, what you need to do, we will talk about that today. So first thing which you need to do for this, if you want to get married, as we know that love has no boundaries. It is often said that कि कभी like love has no boundaries basically. So this is totally natural. If you want to go outside of India and you want to get married to someone else, or someone has came to India and you want to get married to them, you can do that by the Special Marriage Act of India. In 1969 there was also a foreign marriage act, which was Foreign Special Marriage Act. But now in India, as we have Special Marriage Act 1954, all the foreigner and all the parties basically they came under this act. So we will talk about it. First thing which we need to understand about this कि किस तरीके से इसमें शादी की जाती है. If you are marrying a person who is foreign citizen, like that, such a marriage would fall under the category of the Special Marriage Act. This act is concerned with the marriage which takes place between the couple belonging to the different religion, in some cases like different caste also, different background, and different who belongs to the different nationality also. These are the categories of that. So एज अ लीगल एज फॉर गेटिंग मैरिज, अगर आप फॉरनर की बात करते हो तो ऐसा नहीं है. देखिए लीगल मैरिज में इसमें एक चीज़ और है कि जैसे हम लीगल मैरिज की बात करते हैं तो लीगल मैरिज में ये चीज़ नहीं आती है कि उनकी कंट्रीज़ में कितनी एज दी गई. इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट, इंडिया में जितनी मेजोरिटी एक्ट के हिसाब से आपकी जो एज दी गई है फॉर द मैरिज, ये है 18 फॉर द वुमेन एंड 21 फॉर द मैन. सो दिस एज विल बी followed by the Indian rules, because they are getting married in India. So this is all about it. So the requirement of a Special Marriage Act में इसमें क्या होती है? While applying and invoking the Special Marriage Act, the Central Information Commission, which is CIC जो होती है हमारी, has categorically clarified that the bride and the groom from the different religion and the countries, they have to marry under the Special Marriage Act 1954. as I told you, they cannot marry under the personal marital laws, जो उनके पर्सनल मैरिटल लॉज होते हैं. सेम प्रोसेस जो मैंने आपको पहले भी आपकी स्पेशल मैरिज एक्ट वीडियो में बताया गया था कि जिसमें 30 डेज का एक पीरियड होता है, वो एक मजिस्ट्रेट के वहाँ जाके आपको वो नोटिस लगाना होता है. इफ समबडी हैज एनी ऑब्जेक्शन, दे कैन केम एंड दे कैन क्लेम दैट ऑब्जेक्शन. अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो उसकी अगर ऑब्जेक्शन होगा तो देखिए उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें प्रॉपर इंक्वायरी की जाएगी बाय द मजिस्ट्रेट. अगर नहीं है देन वी विल गो विद द फ्लो लाइन. नाउ द डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर दैट, इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? आपके दोनों के बर्थ सर्टिफिकेट लगेंगे एंड द ऑथेंटिक वीज़ा एटलीस्ट 30 डेज फॉर द फॉरेन नेशनल. 30 डेज का वीज़ा लगेगा आपको, जिसमें 30 डेज आपका ये दिखाएगा कि एटलीस्ट 30 डेज यू लाइक फॉर द फॉरेन नेशनल, कि आप फॉरेन नेशनल हो. एन एफिडेविट ऑफ अ सिंगल स्टेटस साइन बाय द बोथ द पार्टीज. एक एफिडेविट लगेगा, दोनों ने शादी का जो एफिडेविट लगाया है उसमें दोनों के साइन होंगे. और सपोज वन ऑफ द पार्टीज गेट मैरिड टू अर्लियर, अगर मान लीजिए कोई पार्टीज कोई पहले से ही शादी करके आई है तो उनका या तो डेथ या तो डिवोर्स सर्टिफिकेट जो उनका लगेगा, क्योंकि बाइगैमी इज नॉट अलाउड इन इंडिया. एड्रेस प्रूफ अलॉन्ग विद द पासपोर्ट साइज फोटोज, सफिशिएंट एविडेंस टू प्रूव 30 डेज रेजिडेंस इन इंडिया, यानी कि शादी करने से पहले आपको 30 डेज के लिए इंडिया में रहना पड़ेगा, सो दैट यू कैन गो फॉर द मैरिज. ऐसा नहीं हो सकता कि आप आज ही इंडिया आए एंड यू वांट टू गेट मैरिड टू समवन एल्स. यू कैन नॉट डू दैट. सफिशिएंट एज आई टोल्ड यू, सफिशिएंट एविडेंस होना चाहिए. एंड वन थिंग ऑफ नो ऑब्जेक्शन लेटर. अभी नो ऑब्जेक्शन लेटर आपको कहाँ से मिलेगा? क्या इंडियन गवर्नमेंट से मिलेगा या फॉरेन गवर्नमेंट से मिलेगा? नो, दिस विल बी इशूड बाय द फॉरेन एम्बेसी. जो आपकी जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर यूएस से कोई आता है तो उसको यूएस एम्बेसी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, विच विल क्लियरफाई दैट ही हैज़ नॉट एनी वाइफ लिविंग स्पाउस इन दैट कंट्री, और पास्ट रिकॉर्ड या ऐसा कुछ भी नहीं है, विच विल क्लियर दैट कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है शादी से. सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द स्पेशल मैरिज एक्ट इफ यू वांट टू गेट मैरिड विद द फॉरनर. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अ न्यू टॉपिक.